I come in, sir? Yes, please come. A very good evening, sir. Please sit down. Thank you, sir. Ankita, Yes, sir. you have done LLM Yes, sir. from the Chanakya National Law University, Patna. Yes, sir. Okay, what was your topic of dissertation? So implementation of Uniform Civil Code in contemporary India. ठीक है, सबसे पहले मुझे यही बता दीजिए where the provision in the Constitution Sir, it is provided under Article 44 of. says Article 44. Sir, the state shall make uniform laws throughout the territory of India. In any their judgment of the Supreme Court. Yes, sir. Shaira Banu versus Union. रिसेंटली अभी किसी स्टेट ने यूसीसी को लागू किया? Yes, sir. Uttarakhand. और उससे पहले कहाँ पे यूसीसी? Sir, Goa. ओके, आप तैयारी से आए, इसका मतलब ऑप्शनल क्या थे आपके? Sir, Constitution Law and TP Act and Commercial Law. ओके, आपका फेवरेट है एविडेंस? Yes, sir. ठीक है, मुझे एक सिंपल सी क्वेश्चन बताइए। देखिए, आप जानते हैं सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यदि चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है तो द ऑर्डर ऑफ फ्रेमिंग द चार्ज इज ए रिविजनल ऑर्डर। सॉरी, अगर डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज इज ए रिविजनल ऑर्डर, उसका रिवीजन लाई करता है। बट मेरा आंसर ये है कि यदि चार्ज फ्रेम कर दिया गया और दूसरा यदि कॉग्निजेंस ले लिया गया, इट इज़ ए इंटरलोकेटरी ऑर्डर बेसिकली, Okay, sir. और उसका रिवीजन नहीं होता। No, sir. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनका भी रिवीजन हो जाता है। ऐसा क्यों? आप मेरा सवाल समझे कि नहीं समझे? Sorry, sir. बाई नेचर दीज ऑर्डर्स आर इंटरलोकेटरी Okay, sir. and section 397 subclause 2 of the CRPC provides that no revision lies of an interlocutory order. Yes, sir. Honorable Supreme Court stated observed in their various case laws. Yes, sir. इस आप इन दोनों आदेशों का भले ही इंटरलोकेटरी हो तो भी रिवीजन हो जाएगा। वाई? Sorry, sir. चलिए सर, आप पूछिए। अभी सर ने इंटरलोकेटरी ऑर्डर की बात किया है, ये बताइए सीपीसी के रिगार्डिंग इंटरलोकेटरी ऑर्डर से क्या समझते हैं आप? So it does not decide any substantive question or any substantive rights. So these are called interlocutory. कहाँ इसका प्रोविजन दिया हुआ है? It is provided under CPC, but I'm unable to recall. ओके, चलिए मैं सीपीसी में आपसे कुछ टर्म्स पूछने जा रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए प्रीसेप्ट ये क्या होता है? Sorry, sir. गार्निशी? Yes, sir. Debtor of judgment debtor is called garnish. ओके, कहाँ पर है इसका प्रोविजन? Sir, it is provided under Order 21 of Civil Procedure. अंडर विच रूल? Sorry, sir. नेस्ट फ्रेंड के बारे में जानते हैं कुछ? Yes, sir. On behalf of minor who files a suit or that is called. ओके, व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड? So when death is the probable cause and not the sorry, sir, can I take a moment? ओके, Yes, sir. So it is provided under section 299 of Indian Penal Code, which says that when death is the likely cause of the act, then it is culpable. likely cause of death. Likely cause, sir. There Can is you knowledge- can you there is define culpable homicide? So when there is a knowledge that death is the probable consequence. And intention? Sorry, sir. ओके, ये बताइए यदि किसी एनिमल की डेथ कॉज की जाए तो क्या ये कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन में आएगा? No, sir. तो ये कौन सा ऑफेंस माना जाए अंडर आईपीसी? Sorry, sir. ठीक है, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। एक बहुत ही लीडिंग केस आपको देखने को मिलता है 299 300 के बीच, कौन सा केस था? This is Govinda. इसमें ये बताइए कितने जजेस की बेंच थी और इसमें कौन कौन से जजेस थे? Sir, I'm unable to recall the whole name, but I recall Justice Melville. ओके, ठीक है सर। अंकिता, ये बताइए कि सीआरपीसी की वो कौन सी धारा है जो भारतीय संविधान के विचार राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है? So under CRPC. जी, आप ये मान के चले कि एक व्यक्ति चाहता है कि मैं फ्री तरीके से घूमूं, मुझे जेल ना जाना पड़े। Yes, sir. So Article 20, Clause 2 and Section 300 of CRPC. ठीक है, ये बताइए एंटीसिपेटरी बेल से आप क्या समझती हैं? So, sir, it is a bail which is given under the anticipation of arrest. ओके, थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगी इसे? So when arrest is anticipated,
that there might be arrest that will happen in non-cognizable and in cognizable and non-bailable offence. ये बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज का ऑब्जेक्ट क्या है? हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट होता है? So, socialism. और Say, and so that's it. किसी दो मौलिक कर्तव्य का जिक्र करेंगी? Sir, fundamental duties. Yes, sir. Uniform Civil Code itself a fundamental duty. कहाँ इसका जिक्र किया गया है? Sorry, sir. Article 44. नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कहाँ किया गया है? I'm so sorry, sir. कोई बात नहीं, आप बताइए, कोई भी दो मौलिक कर्तव्य बता दीजिए. Sir. Sir, can I take a moment? Sure. Fundamental duties. So, abide by the Constitution and national flag, national song, national anthem. ठीक है, आपसे मेरा आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल Yes, sir. वी द पीपल से शुरू होता है ना? इस लाइन को बस बता दीजिए पूरा. Sir, whole preamble हाँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनाइज्ड. of India having solemnly resolved to constitute India into socialist, sovereign, socialist, secular and democratic. ठीक है. So, अंकिता, Yes, sir. आपका रोल नंबर है उसमें 1 2 7 सारे नंबर हैं, बट एक कोई नंबर नहीं है उसमें. So, five. वेरी गुड. आपकी हॉबीज़ हैं एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस. Yes, sir. अभी कौन सा रिसेंटली आप नए प्लेस पे गए हैं? So, so it's not about the another state. It can be within the state or it can be nearby places also. So, sir, I recently visited the glass bridge which is there in the Rajgir. I have not been there. So, sir, I have been there. कितनी हाइट है उसकी? Sorry, sir. चलिए, आपने BLLB किया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा. Yes, sir. अच्छा, ओडिशा के कोई 3 टेम्पल मुझे बताइए, 3 टेम्पल्स. Sir, Lingaraj temple, यस, Konark temple and Puri temple. वेरी गुड. आपने चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना से आई थिंक मास्टर्स किया. LLM, yes, sir. चाणक्य क्यों नाम पड़ा है इसका? Sorry, sir. चाणक्य के बारे में बताइए कुछ. Sir, I remember that he was in the Indian history, ancient history, but I'm unable to. चलिए ठीक है. आप डिस्ट्रिक्ट मधुबनी से. जी सर. मधुबनी की पेंटिंग में ऐसी क्या खासियत है जो इतनी विश्व विख्यात है? सर, वो नेचुरल कलर से बनाया जाता है. तो मधुबनी से ही क्यों? बिहार में तो अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी बना सकते हैं उसको. सर, क्योंकि सर कुछ एक जोग्राफिकल एरिया से कुछ चीज़ें होती है जो वहीं पे. क्या GI टैग मिल गया इनको? जी सर, मिल. GI टैग क्या होता है? सर, GI टैग जब कोई एक पर्टिकुलर कोई जगह हो जहाँ पे वो चीज़ वही बन सकती है और क्योंकि उसके वेदर और क्लाइमेट और मतलब वेदर और बाकी चीज़ें होती है जिस पे वो डिपेंडेंट करता है. चलिए प्लीज़ सर. Content of account book is admissible in the Indian Evidence Act. यस सर. Under which section? सर, सेक्शन 35 if I'm not wrong, sir. I'm not sure. और 34 में क्या है? Yes, sir, 34. चलिए. और content of FIR is admissible under which section? Sir, it is used as a corroborative evidence. Relevancy पूछ रहा हूँ बेटा, admissibility नहीं. Sir, Where the content of FIR is relevant? sir, as a documentary evidence. If the content becomes relevant, then it is admissible. तो कहीं ना कहीं तो relevant बैठता होगा कि नहीं? वो सेक्शन बता दीजिए मुझे. Sorry, sir. आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उस पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो कहाँ रेलिवेंट होगा, किस सेक्शन में? Sir, 65. रेलिवेंसी तो 5 से 55 या 6 to 55 ही मिलेगी आपको. आपका एविडेंस तो फेवरेट सब्जेक्ट है ना. Sir, I'm unable to recall. 55 से तो बाहर जा ही नहीं सकते अगर बात रेलिवेंसी की हो रही है. चलिए कोई बात नहीं, अब आप जा सकते हैं. Thank you, sir. आप इतनी नर्वस क्यों हो रही थी?
सो क्योंकि मेरे सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज नहीं हुए थे। वही। क्योंकि आप तो NLU से पढ़ी हैं, यस सर। CNLU से भी पढ़ी हैं। हाँ सर वो एक ऐसे हैं जो पहले कैंडिडेट हैं जो NLU से भी पढ़ी और CNLU। सर क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और रिवीजन, और क्योंकि घर पे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सर पढ़ाई नहीं हो पाई और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी लास्ट ईयर कितने हुए थे CNLU से सिलेक्शन? अराउंड 100 प्लस। हम तो आपकी प्रोफाइल देख के हम ही नर्वस हो गए थे, मैंने कहा भाई क्या पूछा जाए आपसे, समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, और इसलिए हमने थोड़ा स्टैंडर्ड आपके हाँ सर मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर सर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी नहीं कि मैं अभी यहाँ पे ऑफलाइन दे पाती, तो सर इसलिए मैं रिवाइज प्रॉपर। मान लीजिएगा एक सप्ताह के अंदर अगर इंटरव्यू शेड्यूल जारी हो जाता है सपोज दैट, तो फिर आप लॉस कर देंगे, लॉस हो सकता है ना। जी सर। मत लीजिएगा, आप जितना भी टाइम है उसे सफिशेंट टाइम उसका यूटिलाइज करके जितना हो सके मैक्सिमम रिवाइज करिए, ठीक है। पर्सनैलिटी, वॉइस, प्रेजेंटेशन, ड्रेस कोड, एवरीथिंग इज़ गुड, बट नॉलेज में थोड़ा सर नॉलेज नहीं, क्योंकि सर बस। हाँ सर वो प्रॉपर तरीके से वो नहीं। हाँ जी सर। और मैं बताऊँ आप कैटेगरी से भी हैं, लेकिन इसको माइंड मत रखना, आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी, बट डिपेंड ऑन योर एक्सप्रेशन, मतलब जब आप अच्छे से उसको डिलीवर करते हैं, ठीक है। मेंस अच्छे से हुआ आपका? मेन से NLU और CNLU वाले बच्चों को अच्छा होता सर ठीक हुआ तो था। थोड़ा मुझे पूछना भी नहीं चाहिए है। था। हाँ, सर, इनके तो ठीक पहले हुआ से था। तय फिक्स सर है। कमर्शियल लॉ थोड़ा ठीक नहीं था, बाकी ठीक था। कमर्शियल लॉ लेके भी आपने अच्छा किया, सिलेक्शन हो जाता है ज़्यादातर कमर्शियल वालों का, हाँ जी सर। हो जाएगा आपका डेफिनेटली 100%। Thank you so much, sir. बस आप जितना टाइम है ना, अब आप और मौक मत सर दीजिए। एक ये भी फियर, कैमरा वाला फियर भी सर आ गया था। ये दिख रहे थे आपको खड़े हो? हाँ, पर दिख रहा है ना सर कैमरा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी मिलेगा मुझे। अच्छा अच्छा। तो सर ये चीज़ है सर। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास था कि जैसे पूछते हैं व्हाई यू वांट टू बिकम अ जज, तो सर मैं आंसर्स फ्रेम कर ले रही हूँ, मतलब ठीक है कुछ चीज़ें जो बिल्कुल मतलब चीज़ें सही है कि हाँ जेन्युइन है, लेकिन सर एक और चीज़ है, मेरे पापा भी जुडिशरी में ही हैं, तो सर ये वहाँ पे ये चीज़ें बहुत मतलब मुझे इंस्पायर किया ये चीज़, क्योंकि फैमिली में दादाजी पापा दोनों ही को देखा है, तो इस बैकग्राउंड इससे तो सर अगर मैं वहाँ बोलूँगी तो वो अदरवाइज तो नहीं ना, लगे ना, ना। जब तक पूछना था तो बताने की जरूरत नहीं, खुद पे खुद आप ये भी तो आप बता सकते हो। बट बिहार में ही है ना। देखो बेसिकली आप जैसे पूछा जाए वाई बिकम ए जज, तो आप 4-5 चीज़ें अपनी गिनाएं और फिर फाइनली कहें। इसके अलावा सर चूँकि मुझे एनवायरनमेंट भी ऐसा ही मिला है, मैंने जुडिशरी फैमिली को देखा, पहले मेरे दादाजी भी जज रहे हैं, मेरे फादर भी हैं। नहीं दादाजी तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अच्छा चलो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और फादर भी, तो मुझे एक इंस्पिरेशन वहाँ से भी मिली अपार्ट फ्रॉम दिस, पहले अपनी वो क्वालिटीज़ गिनवाते हुए। और सर मेरे बैठने का हाँ, वो तरीका बहुत काफी शानदार, straight बहुत था। शानदार, बहुत शानदार, कूल एकदम। चश्मे को लेकर के बैठिए थोड़ा। ठीक है सर जसवाल जी, चश्मा ठीक है, आज आपको फेस पे अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है।